عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کے 25 برس مکمل۔ آج ملک بھر میں یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عالمی دباؤ مسترد کرتے ہوئے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ قوم کا اتحاد ہی پاکستان کی اصل جوہری قوت ہے۔ دشمن قوتوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ افواج اور عوام کے درمیان ٹکراؤ ہو۔ قوم متحد ہو کر ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے سرخرو ہو سکتی ہے۔ ہمیں پاکستان کو معاشی قوت بنانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام۔ پاک فوج کا یوم تکبیر کی سلور جوبلی پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام۔ بہترین دماغوں نے مشکل چیلنجز کے باوجود کارنامہ سر انجام دیا۔ مسلح افواج ان افراد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آج کے دن خطے میں قوت کے توازن کو نئی شکل دی گئی۔ یہ وطن ہمیشہ قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ISPR۔ ایٹمی تجربات کی سلور جوبلی کے موقع پر پاک فضائیہ کا پوری پاکستانی قوم کے عزم کو سلام۔ 28 مئی 1998 کے دن پاکستان نے بھارت کے اشتعال انگیز ایٹمی تجربات کے جواب میں ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ پاک فضائیہ کو ایٹمی صلاحیت کے حصول میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے پر فخر ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ۔ اسلام آباد اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان تھا۔ زلزلے کے جھٹکے KP اور پنجاب سمیت شمالی علاقہ جات میں بھی محسوس کیے گئے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عوام کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ PTI کی ایک اور سازش بے نقاب۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اہم گفتگو پکڑ لی۔ آڈیو میں PTI رہنما کے گھر پر فائرنگ اور جعلی چھاپے کے دوران ریپ ایکٹ کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، جس کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزام لگا کر معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانا تھا۔ اس انتہائی گھنونے ڈرامے کا مقصد اپنی مظلومیت کو ثابت کرنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا پریس کانفرنس میں اہم انکشاف۔ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور ملک کو آگ لگانے والے تخریب کاروں کے گروہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا ٹویٹ۔ PTI کا شراسہ بکھرنے کا عمل جاری۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ راجہ خرم نواز، ہاشم ڈوگر، رائے تیمور بھٹی اور دیگر نے بھی عمران خان سے راہیں جدا کر لی۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت۔ ذمہ داروں سے کوئی رعایت نہ برتنے کا مطالبہ۔ یوم مذمت غدار پاکستان کے حوالے سے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاک فوج ملک کی سلامتی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاک فوج اور شہداء کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کا واضح پیغام۔ ترکی میں صدارتی الیکشن کے رن آف مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری۔ صدر رجب طیب ایردوان اور اپوزیشن امیدوار کمال کلیچدار اوغلو مد مقابل۔ 14 مئی کو ہونے والے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ عمان میں جونیئر ہاکی ایشیا کپ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ایونٹ میں دونوں ٹیمیں ناقابل شکست۔ پول اے میں پاکستان 7 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ پاکستان اپنا چوتھا میچ کل جاپان کے خلاف کھیلے گا۔ یوم تکبیر نمائشی T10 میچ۔ PSL چیمپئن لاہور قلندرز اور PCB 11 آج ناروال سپورٹس سٹی میں مد مقابل۔ میچ دیکھیے دوپہر 2:30 سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत बनने के 25 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। मजीद बताएंगे इमरान मनसब खान अपनी रिपोर्ट में। 28 मई 1998 के रोज दोपहर 3:16 पर एटम बम का बटन दबाते ही चागी की पहाड़ी दहक उठी। धमाके होते ही चंद लम्हों में पैरों के नीचे जमीन ने थरथराना शुरू कर दिया। धूल मिट्टी के तबीज बादल नमूदार हुए और स्याह ग्रेनाइट की चट्टानें दूधिया रंग की हो गयीं। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होते ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनकर उभरा। एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने भारत की खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। आलमी दबाव, अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के 5 टेलीफोन और जाती अकाउंट में अरबों डॉलर की पेशकश को ठुकराते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने का फैसला करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। By failing to exercise restraint and responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity. पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में भारत के मुकाबले में अपनी खुद मुख्तारी के दफा के लिए एटमी सलाहियत के हसूल को जरूरी करार दिया था। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 7 साल के मुख्तसर अरसे में जोहरी सलाहियत के हसूल को यकीनी बनाया। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कामयाब एटमी तजर्बात के बाद खिताब का आगाज इस फिक्रे से किया था कि आज हमने भारत के एटमी धमाकों के साथ अपना हिसाब बराबर कर दिया। Pakistan has been obliged to exercise the nuclear option due to weaponization of India's nuclear program. This has led to the collapse of the existential deterrence and had radically altered the strategic balance in our region. भारत के जवाब में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाना लाजमी हो चुका था। एटमी तजर्बात के बाद दोनों ममालिक की क़यादत ने एक दूसरे के खिलाफ सियासी गोलाबारी भी की, लेकिन जल्द ही दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा दिया। एटमी तजर्बात के बाद इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नजरियात की हामिल जमात भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तानी हम मनसब नवाज शरीफ की दावत पर वाघा सरहद से बजरिया बस पाकिस्तान तशरीफ लाए और मीनार पाकिस्तान लाहौर जाकर पाकिस्तान की हकीकत को खुले दिल से तस्लीम किया। पाकिस्तानी कौम अमन, अखुवत और मोहब्बत पर यकीन रखती है। तारीखी हकायक गवाह हैं कि भारत ने पहले एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दंदान चिकन जवाब देने पर मजबूर किया। 28 मई 1998 के बाद भारत समेत दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकती। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम तकबीर की असल अहमियत और पैगाम ये है कि जब बात पाकिस्तान की हो तो तमाम सियासी इख्तलाफ, मफाद और तकसीम ख़त्म हो जाती है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी क़ुव्वत है और दुश्मन क़ुव्वतों की हमेशा ये कोशिश रही है कि अफवाज और अवाम के दरमियान टकराव हो। उन्होंने कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 25 साल कबल पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब देकर इस अज़्म का अदा किया था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, कोई हमारी आज़ादी छीन नहीं सकता। आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वकार और दिफा हमारे लिए हर चीज़ से मुकद्दम है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत पर भरोसा करते हुए किसी सुपर पावर की धमकियों की परवाह नहीं की और ना ही अरबों डॉलर का लालच उन्हें आईनी अज़म से हटा सका। यौम तकबीर पर एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को भी खराज अकीदत पेश करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने 1998 में बतौर अपोजिशन लीडर जौहरी धमाकों के फैसले की तायद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल को मालूम होना चाहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में सियासी कशीदगी इंतहा पर थी, लेकिन मादर वतन के लिए उन्होंने सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम समेत जौहरी प्रोग्राम के तमाम हीरोज, साइंसदानों, इंजीनियर समेत कारकुनान और इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के उन तमाम दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब की क़यादत का तहे दिल से मशकूर हैं। जब भी पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ पर आलमी पाबंदियों का सामना हुआ तो हमारे मोहसिनों ने पाकिस्तान का साथ दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर का सबक ये है कि
तमाम कौम मुत्तहिद होकर हर मुश्किल का सामना करते हुए सुरखरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमेशा पाकिस्तान को अब मुआशी कुव्वत बनाना हमारा मकसद है, इसलिए हमें वही इत्तेहाद, अज़म, तवज्जो और तसलसल दरकार है जिसका मुजाहरा हमारी कौम ने जौहरी प्रोग्राम के लिए किया। मुआशी कमजोरी दूर करना आज का एटमी प्रोग्राम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वतन हमेशा कायम रहेगा। पाक फौज ने यौम तकबीर की सिल्वर जुबली के मौके पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया है। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि आज के दिन खित्ते में क़ुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई। बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कारनामा सरअंजाम दिया। मुसल्लह अफवाज इन अफराद को खराज तहसीन पेश करती है। यौम तकबीर के तारीखी दिन पाकिस्तान की जानिब से किए गए एटमी तजर्बात की सिल्वर जुबली के मौके पर पाक फ़िज़ाइया पूरी पाकिस्तानी कौम के अज़्म को सलाम पेश करती है। 28 मई 1998 के दिन पाकिस्तान ने भारत के इश्तिआल अंगेज़ एटमी तजर्बात के जवाब में एटमी धमाके करके अपनी एटमी सलाहियत का सबूत दिया। पाक फ़िज़ाइया ने इस दौरान अपने C-130 तैयारों के जरिए जौहरी और हसास आलात को टेस्ट साइट तक पहुँचाया और कौम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया, जबकि पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने टेस्ट से कबल और इसके दौरान फ़ज़ाई सिक्योरिटी फराहम की। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे हाई अलर्ट पर रहे, जबकि हमारे शाहीन पायलट्स दुश्मन के किसी भी किस्म की जारियत से निमटने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमातन तैयार थे। पाक फ़िज़ाइया को इस तारीख साज वाक़े के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। इस तारीख़ी दिन की मुनासबत से पाक फ़िज़ाइया पाकिस्तान के फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के अपने अज़म का इरादा करती है और इसका हर सिपाही ये अहद करता है कि वो इसी लगन और अज़्म के साथ मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगा। नाज़रीन, 25 साल पहले चाकी के पहाड़ों में बुलंद होने वाले नारे तकबीर की गूंज आज भी कौम के दिलों में गूंज रही है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। 28 मई यौम तकबीर इस अज़्म की तजदीद का दिन के वतन अजीज की खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 25 साल कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव को यकसर मुस्तरद करके उस वक्त पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया जब भारत ने एटमी धमाके किए। यौम तकबीर हमारी तारीख का ऐसा रोशन दिन है जिस दिन जौहरी तजर्बात के जरिए पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया। मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए आज पूरी कौम यकजान है। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काम था कि बैन अल-अक़वामी दबाव के बावजूद उन्होंने धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी ताकत साबित किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की हमीयत और पाकिस्तान के दिफा की खातर जो सही फैसला था वो लिया। इसकी बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और मियां नवाज शरीफ ने इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। साइंसदानों की अनथक मेहनत और कौमी क़यादत की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों से ही पाकिस्तान 7वीं आलमी एटमी ताकत बना। भारत के जारहाना अज़ाइम के जवाब में पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात दरअसल अवाम के जज्बात के अक्कास है। अफ़वाज पाकिस्तान को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। साइंसदान और हमारे जो कि इस कौम के मेहमान जिनको कहना चाहिए कि जिन्होंने ये वाली प्रोडक्ट इस कौम को दी, वो भी बड़े काबिल तहसीन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने वो काम किया जो आज तक मुस्लिम दुनिया में कभी हुआ नहीं था। यौम तकबीर के मौका पर कौम किसी भी जारहियत के जवाब में अपने तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा करने के साथ साथ दिफा के लिए हमवक्त तैयार है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। 28 मई का दिन मुल्क की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज और अपनी एटमी साइंसदानों पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा शेखुपुरा में यौम तकबीर का केक काटा। तकरीब में मुल्की तरक्की, सलामती और पाक फौज के शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28 मई को मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। इस दिन के साथ पाकिस्तान की मजबूती और दिफा जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 9 मई के दहशत गर्दाना फेल ने इमरान खान के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने दीर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आज वो दिन है कि बहुत बड़े दबाव के तहत एक तरफ प्रेशर
और दूसरी तरफ कई चीज़ों के अफरे नवाज शरीफ को हुई कि आप पे टमी ताकत न बन जाए, धमाके न करे, हम पहले आपको इतने अरबों खरबों डॉलर देंगे और ये नहीं हुआ तो कहता है कि पाकिस्तान को मिटा कर रहेंगे अगर आपने धमाके किए। मगर उसने अल्लाह का नाम लेकर और वाकई शेर निशान के साथ शेर साबित हो गया। उसने वही धमाके करके और पाकिस्तान को महफूज बना दिया। नाज़रीन, यौम तकबीर की मुनासबत से मॉडल स्कूल डेरा बुगटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कबायली अमायदीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आज के दिन दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि 28 मई यौम तकबीर वतन अजीज के दिफा सालमियत और बका का ज़ामिन है। ये दिन मुल्क की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के शमाली और बालाई इलाकों समेत मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मरी, सरगोदा, खुशाब, चकवाल, अटक और फैसलाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था, जिसकी गहराई 223 किलोमीटर और शिद्दत 6.3 थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा शेखुपुरा में यौम तकबीर का केक काटा। तकरीब में मुल्की तरक्की, सलामती और पाक फौज के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28 मई को मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। इस दिन के साथ पाकिस्तान की मजबूती और दिफा जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 9 मई के दहशतगर्दाना फेल ने इमरान खान के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। मुल्क की सियासत में अब इमरान खान का कोई किरदार नहीं है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान चाहते हैं कि इन्हें NRO दिया जाए, मगर इसे पहले 60 अरब की मेगा करप्शन और 9 मई के वाकयात का हिसाब देना होगा। यौम तकबीर के मौके पर साबिक अरकान पंजाब असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज, हाजी गुलाम नबी एडवोकेट ने भी कारकुनों के साथ मिलकर शेखुपुरा में केक काटा। इस मौके पर पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, अफवाज और शहदाए पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। साबिक रुकन पंजाब असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज का कहना था कि कौम मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से एटमी धमाकों का एहसान कभी भी उतार नहीं सकती। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में एक बाइज्जत मकाम दिलवाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खुफिया इदारों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू पकड़ी है, जिसमें 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी और इस पर रात ही अमल होना था। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑडियो PTI के रहनुमा के घर छापे से मुतालिक है और दूसरा ड्रामा ये था कि रेप एक्ट किया जाए। मकसद था कि रेप एक्ट का इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और फिर मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे जो है वो यानी एक्चुअल यानी जो है वो एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था। घर जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो लोगों के घरों में घुस के जो है वो किस तरह से लोगों को हलाक कर रही हैं और लोगों पे ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरानी फितने का मकसद था कि लोगों को गुमराह किया जाए। ये ड्रामा रात किए जाने वाले का इम्कान था, लेकिन एजेंसियों ने बर वक्त इसे नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। 9 मई के जो वाक़यात हैं उन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने जो है वो इंस्टिगेट किया, जिन लोगों ने जो है वो लोगों को गुमराह किया और जो लोग गुमराह होके जो है वो मौके पे गए, कुछ लोग उनको मौके पे लेके गए और वहाँ पे जिन्होंने दिफाई तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाया,
وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے گئے، چیزوں کو جلا دیا، گھروں کو جلایا اور وہاں پہ جو ہے وہ نقصان کیا، ڈیمیج کیا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ قرار واقع سزا ملے گی، انہیں ہر قیمت پہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، کسی سے کوئی روح رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور ملک کو آگ لگانے والے تخریب کاروں کے گروہ سے کوئی بات چیت نہیں کی جاتی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ریت کی طرح بکھر جانے کے بعد عمران خان کو مذاکرات یاد آ گئے، ریاست پر حملہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ عمران خان کی مذاکرات کی بات دراصل NRO کی اپیل ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 60 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والے فورن ایجنٹ توشہ خانہ چور سے مذاکرات نہیں بلکہ اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ قومی املاک اور تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ ایمبولینسز، ہسپتالوں، اسکول جلا کر ملک میں فساد، توڑ پھوڑ اور انتشار پھیلا کر نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر انڈیل کر عمران خان کہتا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں۔ قوم، وطن اور شہداء کے مجرموں اور دہشت گردوں کے سرغنہ سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ جہازوں میں بھر کر لوگوں کو پٹے پہنا کر PTI بنی تھی، جو جماعتیں سیاسی نہیں ہوتی وہ اسی طرح بکھر جاتی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت نے سینکڑوں دن جیلوں اور عقوبت خانوں میں گزارے، جھوٹے مقدمات کا سامنا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سرخرو ہوئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے معیشت، کشمیر اور سیکیورٹی جیسے قومی امور پر بات چیت نہ کی، فیٹف کے مسئلے پر مذاکرات نہ کی، تو اب کیوں؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک میں آگ لگانے، انتشار پھیلانے، ذہنوں میں نفرت کی آگ بھر کر مسلح جتھے بنانے والے سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روکنا گنہگار ہونے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دامن صاف ہے تو آپ قانون کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ مریم نواز نے کہا کہ قانون کا مذاق بنانے والے جرم میں برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ قوم شہداء وطن کو سلام کہتی ہے۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سپاہی حضرت بلال انتہائی نڈر تھے جس نے 4 مئی 2023 کو ضلع میران شاہ کے علاقے دردھونی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سپاہی حضرت بلال شہید کا تعلق کوٹلنگ مردان خیبر پختونخوا سے تھا۔ سوگ باران میں والدین کو اپنی شہادت سے غمگسار چھوڑا۔ شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کے دغه دوران کې ماته یو کال راغی، نو ماته راغی د میران شاه نه یو کال، هغه ماته وی چې بھائی تاسو د بلال پلار خبرې کوئ، ما جی زه بلال پلار خبرې کوم، هغه وی تاسو حوصله برابر کړئ، تاسو چې کوم دی ځان کلک کړئ، مضبوط کړئ، او بلال چې دی نو خدای چې کوم دی په خپل لار کې قبول کو، شهید شو۔ داغه خو دا خامخا هلکان دي، خو داغه دا شوق و بار بار به چې کوم کنده د پستول لا برتې لا خپل دې پر چې کوم کنده چې را کوم چې شوق یې بس الله تعالی د انسان هغه پوره کوي، او داغه شوق چې بس الله له پوره کوي، او بل چې داسې ښه مرتبه چاته میلاو شي نو هغه فخر خبره ده۔ دا د شوق او د وړوکوالي نه چې به کله پوځیان پولیس به ده ولیدل نو ټوله ورځ به پسې بیا ګرځېدو۔ یوم مذمت غدار پاکستان کے حوالے سے مختلف شہروں میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریلیوں میں شرکاء کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملک بھر میں عوام کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا کہ پاک فوج اور شہداء کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئٹہ میں تحریک نوجوانان پاکستان کے زیر انتظام سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے چیئرمین تحریک نوجوان عبداللہ گل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سیاست کی آڑ میں سرکاری عمارتوں کا جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہرے سنگین جرم ہے۔ سیاسی فسادات میں ملوث سابق و حاضر سروس امریکی فوجیوں کو جیل کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی فوج کے 70 سے زائد حاضر سروس اور سابق ریٹائرڈ فوجی 6 جنوری 2021 کو امریکی دارالحکومت میں امریکی کانگریس پر حملہ کرنے کے مجرمانہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہنگامے ٹرمپ کی طرف سے احتجاج کی کال کا نتیجہ تھا، جس میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا کہ 2020 کے انتخابات کو ڈیموکریٹس نے چوری کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کو آڈیو ریکارڈنگ اور فسادیوں کی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ پرتشدد فسادات کے لیے ہجوم کو اکٹھا کرنا اور اکسانا ایک منظم منصوبہ بندی تھی۔ ان سابق فوجیوں پر سازش، کار سرکار میں مداخلت، سرکاری املاک کو تباہ کرنے اور حساس جگہوں میں غیر قانونی داخلے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکی حکومت کی طرف سے سابق فوجیوں کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کی درخواست کی گئی ہے۔ سابق فوجی جنہیں سزا سنائی گئی ہے ان میں اوہایو کے 2 سابق فوجی خواتین جیسیکا واٹکنز اور فلوریڈا کے کینتھ ہیلسن کو بھی مئی 2023 میں بالترتیب 8.5 اور 4 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ دونوں نے امریکی دارالحکومت کی عمارت میں فوجی طرز کے داخلے کا اہتمام کیا تھا۔ ڈینیل رے کاجویل یو ایس میرین کو فروری 2023 میں فسادات کے دوران پولیس پر حملہ کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ہچرڈ سپیڈ سابق امریکی بحریہ کے ریز روسٹ کو ہٹلر کے لیے اپنی تعریف کا اظہار کرنے اور نفرت انگیز نظریہ پھیلانے کے جرم میں 4 سال کی سزا سنائی گئی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل لیری ریڈل بروک جونیئر کو سوشل میڈیا پوسٹ میں پرتشدد اور نفرت انگیز گفتگو کا اظہار کرنے کے جرم میں 2 سال جیل اور 2 سال نظربندی کی سزا سنائی گئی۔ عراق میں خدمت کے اعتراف میں پرپل ہارٹ ایوارڈ وصول کرنے والے جوشو کارلو کو AR-15 کو کیپٹل فسادات میں لے جانے کا مجرم قرار دیا گیا، جس میں اس جرم میں 31 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی۔ کانگریس چری ہیریل سابق امریکی میرین کی امریکی دارالحکومت کی عمارت پر حملہ کرنے کے الزام میں 20 سال تک کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میجر کرسٹوفر ناگریس کو مئی 2021 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، جبکہ اس کی شناخت فسادات کی ویڈیو فوٹیج کے ذریعے کی گئی تھی۔ 3 حاضر سروس ملٹری عہدیداروں میکا کومر، جوشوا ایپٹر اور ڈاش ڈیرل ہیلن کو جنوری 2023 میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ ان کے ساتھی میرینز نے تفتیش کاروں کو دارالحکومت میں فسادات کی فوٹیج میں ان کی شناخت کرنے میں مدد کی۔ اور ناظرین، مسیحی برادری کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ چرچ آف پاکستان لاہور کے وفد نے تباہ جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور پھولوں کے گلدستے رکھے۔ جناح ہاؤس کی تباہی دیکھ کر آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور ہم افسردہ ہیں۔ یہ سارے اپنی آنکھوں سے سب تمام چیزوں کو دیکھ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور قائد کے لیے افسردہ ہے۔ میں ایک وار ویٹرن ہوں، میں نے 91 اور 96 دونوں میں سیاچین میں اس ملک اس قوم کی خاطر جنگ لڑی ہے اور میرے لیے یہ سخت افسوس کا مقام ہے۔ جناح ہاؤس میں ہم آئے ہیں اور اس کو دیکھ کر یقین جانے دلی دکھ ہمیں ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر جانا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج پر حملہ نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم پر ایک حملہ ہے اور جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج خالد آباد۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ 28 مئی 1998 کا دن ہماری سلامتی، دفاع اور قومی وقار کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی سلور جوبلی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور سائنسدان عبدالقدیر کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ تقریب سے سینیٹر مشاہد حسین سید، مجیب الرحمان شامی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر سینیٹر شیر رحمان نے پلاسٹک سے پیدا ہونے والے آلودگی کے خاتمے کے لیے پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کا انعقاد فرانسیسی حکومت کی جانب سے بین الحکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے کیا گیا تھا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیری رحمان نے پائیدار پلاسٹک کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صحت اور ماحولیات کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی بات کی۔
आला सतह इजलास के मौके पर लीडरशिप डायलॉग से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी के खात्मे के लिए मजबूत और जामा हिकमत अमली की जरूरत है। सेनेटर शेरी रहमान ने कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ्रांस के वजीर क्रिस्टोफ बेको से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने नॉर्वे, एक्वाडोर, रोमानिया और एंटीगुआ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए माहौलियाती तब्दीली से भी गुफ्तगू की। सेनेटर शेरी रहमान ने पेरू से ताल्लुक़ रखने वाले INC के सरबरा मिराज क्वाड्रा से भी मुलाकात की। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ स्तोर के इलाके शॉन्टर में बर्फानी तौदे में दब कर जाम बहक होने वालों की मैयतें आबाई इलाके चकवाल रवाना कर दी गई हैं। अफसोसनाक वाक़े में 2 बच्चों और 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद जाम बहक जबकि 14 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल स्तोर में इलाज जारी है। मलबे तले अफराद को निकालने में स्तोर ज़िला इंतज़ामिया, मकामी अफराद और पाक फ़ौज के जवानों ने हिस्सा लिया। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले खाना बदोश कबीला कश्मीर से बरास्ता शोन्टर पास स्तोर आ रहा था कि तोदे की जद में आ गया। और नाज़रीन, PTI का शिराजा बेखरने का अमल जारी है। मजीद कई रहनुमाओं ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली हैं। इमरान इस्माइल, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, हाशिम डोगर, तैमूर भट्टी समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। तफसील राहील अंसार से। मुल्क भर में PTI छोड़ने का सिलसिला जारी है। इमरान खान के इंतहाई काबिल एतमाद साथी और काबिल भरोसा रहनुमा और कारकुन भी पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PTI के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा कि 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं आज के बाद से कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूँ। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। खान साहब, आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने न सिर्फ ओहदों से इस्तीफा दिया, पार्टी को अलविदा कहा, बल्कि सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा, मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और राजा खुर्रम नवाज ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हुए 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात के जिम्मेदारों से कोई रायत न बरतने का मुतालबा किया। 9 मई के दिलसोज वाक़यात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। पूरे हल्के की तरफ से ये हम इस चीज़ को कंडेम भी कर रहे हैं कि फिल वक्त हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं और जितने भी हमारे पास ओहदे हैं PTI के, हम उससे भी दस्तबरदार हो रहे हैं। PTI के MNA शौकत अली ने पार्टी की एडवाइजरी कमेटी और बुनियादी रुकनियत समेत तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा कि 9 मई को जो हुआ वो जमहूरियत नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि अपने घर को आग लगाकर चिराग नहीं जलाया जा सकता। मैं शहदा और गालियों की फैमिली उनके साथ अजहार यकजहती करता हूँ। जो लोग इन वाक़यात में मुलविस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलना वक्त का तकादा है। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, सियालकोट से साबिक वजीर चौधरी इखलाक, झंग से राय तैमूर, साबिक MPA मामून तारड़, साबिक MNA मनसब डोगर, बहावलपुर से साबिक MPA समीउल्लाह चौधरी ने भी PTI को खैराबाद कह दिया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाक बहरिया के जहाज PNS शाहजहां ने मलेशिया की बंदरगाह लिंकावी का दौरा किया। पाकिस्तानी सिफारती अमले और मलेशियन नेवी के हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
PNS शाहजहां ने मलेशिया में होने वाली लिंकावी में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम और एरोस्पेस नुमाइश में शिरकत की। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर के मलेशियन हुक्काम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। PNS शाहजहां ने लंकावी में बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू में भी शिरकत की। नुमाइश में इख्तिताम पर जहाज ने ब्रुनाई, चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमरीका और दीगर बहरी अफवाज के जंगी जहाज़ों के साथ मशकों में भी हिस्सा लिया। PNS शाहजहां के दौरा मलेशिया से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां चिल्ड्रन अस्पताल के इनक्यूबेटर में ओवर हीटिंग से बच्चे के जाँ बहक होने का वाकया पेश आया, जिसके बाद वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने नर्सरी में मासूम बच्चे के जाँ बहक होने के वाकये का सख्त नोटिस लिया और 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी सेहत एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर मोहम्मद अजहर, डॉक्टर आमिर नसीर और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वाकये पर जीरो टॉलरेंस होगी और कोताही बरतने वाले अमले का तयन करके कानून के तहत करार वाकई सजा दी जाएगी। नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से जुल्म जारहत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई और लोगों को हिरासा किया। मुकामी लोगों ने बताया कि फौजियों ने उनके घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को हिरासा किया। इससे कबल फौजी एहलकारों ने जिले के परचर्ची इलाके में एक घर पर छापा मारकर बेगुनाह नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। जिला बारामूला में भी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नौजवानों को गिरफ्तारी का जवाज फराहम करने के लिए उन्हें मुजाहिद तंजीमों का कारकुन करार दिया है। तुर्की में आज सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है। तुर्क अवाम अगले 5 साल के लिए मुल्क के सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग के पहले मरहले में रजब तैयब एर्दोगान ने 49.5% और उनके हरीफ कमाल खलीजदार ओगलू ने 44.9% वोट हासिल किए थे। कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट नहीं हासिल कर सका था। आज होने वाले इंतखाबात को तुर्की की हालिया तारीख के इंतहाई अहम इंतखाबात करार दिया जा रहा है। 14 मई को होने वाले इंतखाबात में सदर एर्दोगान की पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने 600 में से 323 नशिस्तें जीती हैं। अफगान और ईरानी फोर्सेस के दरमियान नमरूज और सिस्तान के सरहदी इलाके में झड़प हुई है, जिसमें एक अफगान और 2 ईरानी एहलकार मारे गए हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक झड़प में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अफगान वजारत दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी फोर्सेस की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद तालिबान फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगान वजारत दिफा ने मसाइल की बातचीत के जरिए हल करने पर जोर देते हुए कहा है कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। और नाज़रीन, डिफॉल्ट से बचने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन और अवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। 1.5 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद अमरीकी सदर बाइडन और स्पीकर केविन मैकार्थी ने मौजूदा 31.4 ट्रिलियन कर्ज की हद में 2 साल के लिए इजाफे पर इत्तेफाक कर लिया। इस बिल पर कांग्रेस में रायशुमारी आइंदा हफ्ते होगी, जिसकी मंजूरी के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातों की हिमायत दरकार होगी। अमरीकी सदर ने इस मुआहदे को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दिया है। इससे कबल अमरीकी वजीर खजाना जेनेट येलेन ने खबरदार किया था कि अगर जल्द अज जल्द कर्ज की हद में इजाफा नहीं होता तो 5 जून के बाद अमरीकी हुकूमत और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फलस्तीन में हमस समेत दीगर इलाकों में यहूदियों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी मुजाहिरीन का कहना है कि इस्राएली हुकूमत की जानिब से खाली की गई बस्तियों में यहूदी आबादकारों को दोबारा वापस जाने की इजाजत देने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, बैनुल-अक़वामी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्राएली फौज के सेंट्रल कमांड के सरबराह ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत इस्राएली आबादकारों को हम्स में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने भी इसराइल के हालिया गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। और नाज़रीन, आलमी अमन के लिए कोशां अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती की खातिर बेशुमार कीमती जानों को बचाया है। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा का अमन बरकरार रखने की काविशों, इंसानी मसाइब के खात्मे, जंगों और अंदरूनी तनाज़ात से लैस ममालिक में देरपा अमन और अमान की सूरत हाल कायम रखने के आलमी अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम बर्रे आज़मों में अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दी।
पाकिस्तानी अमन दस्ते नहायत महारत और लगन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस के मिशन को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ मज़ीद कौमी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने HSN कॉलेज में एहसन जावेद साइंस इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने गवर्नर पंजाब को सेंटर से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि HSN कॉलेज एक तारीखी और कदीम तालीमी दरसगाह है। यहाँ के फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के साइंसी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीमात से भी रोशनास करवाना है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवानों में मस्बत सोच पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तालीमी इदारे ऐसे दरख्शां सितारे पैदा करें जो अल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक जुर्रतमंद और आला इखलाकी इक़दार का नमूना हो। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान खाकर से ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा महंगाई बिलखसूस गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की वजह से गरीब आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकर ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मालिकान के मसाइल हल और ख़ासकर बैनुल सूबाई सतह पर आज़ादाना नक़्ल हमल की इजाज़त को यकीनी बनाने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर हमारा भरपूर ताउन आपके साथ रहेगा। ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान और यौम तकबीर की सिल्वर जुबली पर पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि 28 मई 1998 में मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 7 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। उन्होंने शोहदा को भी खराज अकीदत पेश करते हुए 9 मई को दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि शोहदा की लाज़वाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर यौम तकबीर की सिल्वर जुबली का केक भी काटा गया और मुल्क में तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ओहदेदारों और अरकान ने यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र दिन है। उनका मजीद कहना था कि 25 साल कबल मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाका करके मुल्क की दफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम दुनिया की 7वीं एटमी ताकत हैं। एटमी क़ुव्वत होना हमारे दफा को मजबूत बनाता है और हमारी बका का ज़ामिन है। तकरीब में यौम तकबीर का केक काटा गया और भरपूर नारेबाजी भी की गई। नाज़रीन, पेरिस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया। तकरीब के ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फ्रांस के रहनुमा सरदार ज़हूर इकबाल थे। इस मौके पर शुरा ने कहा कि पाक फौज हमारा फ़ख्र है, कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद जो है वो ये है कि 9 मई के और 10 मई के हवाले से जो पाकिस्तान में साना हुआ है, मैं उसे साना कहूँगा, बहुत बड़ा यानी कि डिज़ास्टर हुआ है। और जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज की तनसीबात के खिलाफ एक्शन किया गया है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जिन लोगों ने इस ऐसी कार्रवाई की है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। 6 रोज़ से जारी हज ऑपरेशन में 71 परवाज़ों के जरिए 19,000 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। तफसील जानते हैं राना फ़हीम असलम से। आज़मीन हज ने हुकूमत पाकिस्तान और वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। आप किस दिन तशरीफ लाए हैं? 23 को। तो आपका लगेज आपको आराम से मिल गया था? हाँ नहीं, सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ गया था, लगेज आ गया था। खाना ठीक है मेरे ख्याल में ना, जिस तरह की तादाद है उस हिसाब से ठीक। जैसे जैसे उन्होंने हमें सहूलतें फराहम की हैं यहाँ पे होटल पहुँचने तक और कमरा दिलवाने तक, वो बहुत ज़बरदस्त थी। कुर्बानी के पैसे वो इन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ये सबसे बेस्ट था इनका। खाना भी बहुत अच्छा है, रिहाइश बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है हमें, क्योंकि इधर से मस्जिद नबी बिल्कुल करीब है, खाना भी बेहतरीन है, रहाइश भी बेहतरीन है, कोई मसला नहीं अभी तक। मॉनिटरिंग टीम ने आज़मीन को खाना की फराहमी में ताख़ीर और मेयार के मुताबिक न होने पर होटल इंतजामिया को जुर्माने भी किए। कोशिश करते हैं कि बगैर किसी तखसीस के जिस हद तक हो वो हुज्जाज इकराम को सहूलियात फराहम करें। तो इसमें किसी वक्त की कैद नहीं है, किसी रैंक की कैद नहीं है, सहूलियात फराहम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका स्टैंडर्ड
और इनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली कि मुसलसल मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो इन प्लेस होगा। वज़ारत मजहबी अमूर आज़मीन हज को मस्जिद नबवी के अतराफ में रिहाइशें फराहम करने के लिए मुकम्मल कोशिशें कर रही है। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मदीना। वज़ीर मजहबी उमूर सैयद तलहा महमूद आज़मीन हज की शिकायत को खुद देख रहे हैं और ज़ाती तौर पर शिकायत का इज़ाला कर रहे हैं। मज़ीद जानिए वकार हैदर की रिपोर्ट में। आज़मीन हज की मुआवनत के लिए वजारत हज की जानिब से मुआवनीन हज भेजे जाते हैं, जिनका काम हुज्जाज कराम को मुआवनत फराहम करना होता है। मुआवनीन को खसूसी तरबियत भी दी जाती है। वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने मुआवनीन हज के आखिरी तरबियती सेशन से खिताब में कहा कि हमने आज़मीन हज को बेहतरीन खिदमत फराहम करनी है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने कहा है कि हम 80,000 या 85,000 लोगों को हज कराएंगे। हमारा काम तो रेगुलेटरी बॉडी है कि हम रेगुलेट करें और देखें कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे जब ली है तो उसको पूरा फिर करना पड़ेगा। वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा कि मुआवनीन खास तौर पर आज़मीन हज और हुज्जाज कराम से मोहब्बत और इज्जत वाला रवैया अपनाएं, ताकि उनको किसी किस्म के मसले से दो चार न होना पड़े। अलर्ट होकर काम करो। हो सकता है जिस चौक पे आप खड़े हो वहीं से आपकी तस्वीर बन के मेरे पास पहुंच जाए, या आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो तो वो वीडियो बने, क्योंकि आजकल लोगों ने एक चीज सीख ली है और वो कुछ छोटे से छोटा भी होगा ना उसको वीडियो बनानी आती है। खाना नहीं मिला वो भी मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, खाने के अंदर नमक कितना है वो भी रिपोर्ट आ रही है। उलझना नहीं है, आपने किसी के साथ भी नहीं उलझना, चाहे सऊदी हो चाहे कुछ हो। थोड़ी सी इज्जत में आपका डिफरेंस भी आता है तो चुप करके साइड मार लें। सेनेटर तलहा महमूद का कहना था कि हुज्जाज कराम के हवाले से किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में वाक़ 400 साल पुराना शिगर फोर्ट सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। लकड़ी और पत्थर से तामीर किए गए इस किले में तारीखी म्यूजियम भी है, जिसमें शिगर के हुक्मरानों के इस्तेमाल की अशिया रखी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलजार शिगरी। बल्तिस्तान के ज़िले शिगर में मौजूद 400 साल पुराना किला बल्तिस्तान के अहम सयाहती मकामात में से एक है। शिगर के हुक्मरानों ने यह किला लकड़ी और पत्थर से तामीर किया। बल्ती और कश्मीर तर्ज तामीर से बने इस किले को मुकामी ज़बान में फोंखर कहते हैं। किले का एक हिस्सा म्यूज़ियम पर मुश्तमिल है, जिसमें शिगर के हुक्मरानों के इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह इस किले को देखने इसका रुख करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है फैमिली के साथ आने की। यहाँ रिहाइश का बहुत अच्छा इंतजाम है और एक अलग सी फीलिंग आती है सोच के इंसान को कि 450 साल पुरानी ये इमारत है और इसके अंदर अब इस काबिल इसको बना दिया यहाँ की इंतजामिया ने कि आप सुकून से आके यहाँ बैठ सकते हैं। कल्चर जो बादशाह का जो नजर आया ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, तो मैंने इसलिए आज कोशिश की कि मैं टाइम निकालूं और अपनी फैमिली को भी विजिट करवाऊं इधर जगह का। बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ भी बच्चों के साथ भी जो भी आ सकते हैं। इट्स वेरी गुड, आई वुड 100% रेकमेंड दिस। शिगर किला जहां शिगर के हुक्मरानों की जाहो जलाल की अलामत है, वहीं पर शिगर की अहम सयाहती मकामात में से एक है। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 9 मई के रियासत मुखालिफ वाक़यात के ज़िम्मेदारों से कानून के मुताबिक सलूक होगा। शेखुपुरा में गैस फराहमी मंसूबे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमात का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने दरअसल दुश्मन के अज़ाइम की तकमील की। इन अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा ताकि आइंदा कोई गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बनकर मुल्क दुश्मनी ना कर सके। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की ख्वाबगाह से मिलने वाली उनकी तलवार लंदन में 1 करोड़ 40 लाख पाउंड में फरोख्त की गई। ये तलवार स्टील से बनी हुई है, जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। ये शानदार तलवार टीपू सुल्तान से मुंसलिक तमाम हथियारों में सबसे अजीम शान समझी जाती है। तलवार पर शमशीर मालिक के अलावा या नासिर या फतह या नुसीर या मुइन या ज़हीरुल्लाह दर्ज है। तलवार की इब्तदाई बोली 15 से 20 लाख पाउंड के दरमियान थी, लेकिन उसकी नीलामी 14 मिलियन पाउंड में हुई। बरे सगीर की तारीख में शहर मैसूर टीपू सुल्तान एक अजीम लीडर के तौर पर हमेशा जिंदा रहेंगे। इस बहादुर इंसान से वाबस्ता चीज़ों की मिल्कियत हासिल करने में लोग आज भी फख्र महसूस करते हैं। नाज़रीन, अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली।
ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں 45، تربت 45، دادو میں 46، نواب شاہ 42، جبکہ موہنجو داڑو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔